آج پھر میرے جسم میں بہت درد تھی، جبکہ میں روز طاقت کی گولیاں بھی کھاتی تھی۔ میری شادی کو ابھی دوسرا مہینہ تھا۔ اب طاقت کی گولیاں کھاتے ہی مجھے نیند آتی تو شوہر کے آنے سے پہلے ہی میں سو جایا کرتی تھی۔ ہر صبح جب میں اٹھتی تو جسم درد سے چور ہوتا تھا، اور شوہر بھی ناراض رہتا کہ میں اس کے گھر آنے سے پہلے سو جاتی ہوں، مگر مجھے اس سب کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جمشید، آج میرا جسم پھر بہت درد کر رہا ہے۔ میں صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو مخاطب کر کے اس کو بتانے لگی، مگر میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، یہ تو بس تمہارے بہانے ہیں، تم مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتی ہو، تب ہی تو میرے گھر آنے سے پہلے ہی سو جاتی ہو۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے شوہر کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں جب طاقت کی دوائیاں کھاتی ہوں جو تمہاری اماں مجھے کھلاتی ہیں، اس کے بعد مجھے اتنی گہری نیند آتی ہے کہ مجھے اپنی بھی ہوش نہیں رہتی۔ اس بات پر میرا شوہر ایک دم بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، تم میری ماں پر الزام لگا رہی ہو کہ میری ماں جان بوجھ کر ایسی ادویات دیتی ہے کہ تم سوئی رہو، تمہاری تو اپنی ہی نیندیں پوری نہیں ہوتی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنا قصور کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس میں خود بے بس تھی۔ مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ میری ساس نے بس ایک ہی ضد لگا رکھی تھی کہ یہ گولیاں کھا لیا کرو، تم لوگوں کو اولاد بھی جلدی ہو جائے گی۔ میرا شوہر اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ساس کو بہت ارمان تھے اپنے پوتا پوتی دیکھنے کے، مگر وہ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ ابھی ہماری شادی کو اتنا وقت ہی تو نہیں ہوا۔ ابھی شادی کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ میری ساس نے مجھے باتیں کرنا شروع کر دی کہ تمہارے ساتھ جس کی شادی ہوئی تھی، ان سب کے ہاں خوشخبری ہے سوائے تمہارے۔ مگر میں اپنی ساس کو کیا بتاتی۔ ایک روز میری ساس نہ جانے کس کلینک سے ادویات لے آئیں اور مجھے کہنے لگی کہ اس کو کھانے سے تمہارے وجود میں طاقت آئے گی، مگر ساس اپنا رویہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے سارا دن گھر کا کام کرواتی تھی۔ ایک روز میری بڑی نند گھر پر آئی تو میں تھکاوٹ سے چور ابھی بیٹھی ہی تھی جب نند مجھ سے کہنے لگی، کیا بات ہے بھابی، اتنی تھکی کیوں ہے؟ گھر کے کام تو سب ہی کرتے ہیں، ہم تو نہیں اتنا تھکتی، اور تمہارے گھر پر تو نندوں کا بوجھ بھی نہیں ہے، ہمارے سر پر تو نندیں بھی آ کر بیٹھی ہوئی ہیں، ہمیں تو کبھی اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ میں خاموشی سے اپنی نند کی بات سن رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے تانے مار رہی ہے، مگر اس وقت میں اس کو کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ تب ہی میں خاموش رہی، مگر جیسے ہی میری نند نے میری ساس کو اشارہ کیا، میں اس اشارے کو سمجھ نہیں پائی اور کہنے لگی کہ اماں بھابی کو اسی کلینک سے طاقت کی دوائیاں کیوں نہیں لا دیتی جو تم نے مجھے لا کر دی تھی۔ وہ دوائی بہت کارآمد تھی۔ میں حیرت سے اپنی نند کو دیکھنے لگی، کیونکہ مجھے کوئی دوائی نہیں کھانی تھی۔ میں کسی صورت بغیر وجہ کے دوائی نہیں کھا سکتی تھی۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بھلا دوائی کیوں کھاؤں گی؟ ویسے ہی کچھ دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ارے بھابی، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اس سے تمہیں حمل بھی جلدی ہو جائے گا، اور پھر دیکھنا تم جلدی ماں بن جاؤ گی۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے اس گھر میں بہت عجیب سا محسوس ہوتا تھا، جیسے کوئی راز ہو جو کم از کم مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ میں بالکل خاموش ہو گئی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ساس کی دی ہوئی دوائیاں نہیں کھاؤں گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرا نام مریم ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لاڈو پیارو میں پلی بڑی، کبھی کسی کی نہ تو کوئی بات سنی تھی اور نہ ہی کسی کے معاملات میں دخل اندازی دی تھی۔ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا تھا۔ اماں ابا کی چاہت ٹھیک ہے میری شادی جلد ہو جائے، وہ اپنی زندگی میں مجھے بیاہ دینا چاہتے تھے۔ اماں کی سہیلی نے اماں کو جنید کے رشتے میں بتایا۔ اماں کو جنید بہت اچھا لگا۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ لڑکا بہت اچھا ہے اور گھر بار بھی اچھا ہے، 2 بہنیں 1 بھائی ہے، یقیناً لاڈلا ہوگا، اور پھر تم لاڈلی بھابی بن کے رہو گی۔ تم بھی تو اکلوتی ہو، میں بس یہی چاہتی ہوں کہ تم جہاں بھی رہو خوش رہو، تم پہ کوئی آفت نہ آئے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ماں، آپ لوگ میری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں جبکہ میں یہاں پر خوش ہوں؟ اماں کہنے لگی، ایسے نہیں کہتے، بیٹیوں کو تو شادی کر کے جانا ہی ہوتا ہے،
मैं भी तो शादी करके आई थी तुम्हारे बाबा के साथ। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा काश मुझे भी मेरा शौहर मेरे बाप जैसा मिले। अम्मा मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि हर बेटी की यही ख्वाहिश होती है। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप जैसा बन के दिखाया, अब खुदा करे कि तुम्हें भी तुम्हारे बाप जैसा शौहर मिल जाए। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा हर मर्तबा ऐसा इत्तेफाक नहीं होता। तभी अम्मा एकदम तड़प उठी और कहने लगी कि मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालते हैं, क्या पता कौन सा वक्त कबूलियत का हो। मैंने अम्मा से कहा कि माँ फिक्र न करे, मेरे मुंह से निकली कोई भी बात पूरी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि मुझे भी बाबा जैसा शौहर मिलेगा। मगर अम्मा के दिल में न जाने क्यों एक डर बैठ गया था। वो हर बार यही कहती कि मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा डर लगा रहता है। जब भी तुम्हारी शादी का सोचती हूँ तो मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा अब कौन घबरा रहा है, शादी करने से मैं तो राजी हूँ। इस शादी से मैं दुल्हन बनी बैठी थी जब अब्बा मेरे पास आए और आकर कहने लगे कि बेटा एक बात हमेशा याद रखना, हर जगह पर हर चीज नहीं मिलती। अगर तुम कहो कि तुम्हारे बाप जैसा शौहर तुम्हें मिले तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कई मर्तबा तुम्हें हालात खुद बदलने पड़ेंगे। पकी पकाई खीर सिर्फ माँ बाप के घर में मिलती है, ससुराल में खीर को खुद पकाना पड़ता है। अब ये तुम पर मुनसर है कि तुम किस तरह सबको लेकर चलती हो। वहाँ तुम्हारे ऐसे रिश्तेदार भी होंगे जो तुम्हारे खिलाफ होंगे। हर किसी को तुम पसंद नहीं होगी, लेकिन तुम्हें बड़ी साबर बन के वहाँ पर गुजारा करना है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने ससुराल जाकर मेरा सर झुकाओगी नहीं। अब्बा की बातें अब मुझे डरा रही थी, लेकिन वो 80% दुरुस्त भी थी। मेरे आगे निकाहनामा किया गया तो एक दफा मेरी रूह कांप गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। दिल तो चाहा कि एक मर्तबा इस शादी से इनकार कर दूं। माँ बाप के घर में जिस तरह मैं शहजादी बनकर रह रही थी, मैं चाहती थी कि ससुराल जाकर भी मेरे साथ ऐसा ही रवैया इख्तियार किया जाए। मगर अब्बा की बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि हर जगह हर चीज नहीं मिलती। माँ बाप का घर छोड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन मैं नई उम्मीदें लेकर अपने ससुराल गई। मैं कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी जब मेरी सास मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि ये दूध का गिलास पी लेना। मैं खुश हो गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरी सास भी मेरी माँ की तरह ही है। मैंने अपनी सास से कहा ठीक है मैं पी लूंगी। थकावट की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी आंखें बंद हो रही थीं। मगर मुझे अपने शौहर का इंतजार करना था। मेरी अम्मा ने तो मुझे यही बताया था। मैं बेड पर बैठे बैठे थक गई तो उठ के कमरे का जायजा लेने लगी। वो कमरा न ज्यादा छोटा था न ज्यादा बड़ा था, लेकिन एक अजीब सी बात इस कमरे में थी कि वॉशरूम के अलावा इस कमरे में एक और छोटा सा दरवाजा था, जैसे कोई अलमारी बनी हो। मैं इसको अभी खोलने ही वाली थी, तब ही मेरा शौहर कमरे में आया और आकर एकदम गुस्से में कहने लगा आज के बाद इस दरवाजे के पास मत जाना। मैं एकदम डर सी गई। इसका क्या मतलब था? कमरे में मौजूद हर चीज पे मेरा बराबर का हक था। फिर भला मेरा शौहर ऐसे क्यों कह रहा था? पहला दिन था इसलिए मैं खामोश रही और सोचा कि कुछ देर के बाद पूछूंगी कि आखिर क्या वजह है जो मैं इस दरवाजे को नहीं खोल सकती। अगली सुबह मेरा शौहर पहले ही उठ चुका था। मैं उठी तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अपनी तारीफ पर मैं एकदम शर्मा गई, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी खूबसूरती मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाली है। मैं और मेरा शौहर कमरे से बाहर निकले तो सामने कुछ मर्द हजरात बैठे थे, मगर औरत का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने हैरत और सवालिया नजरों से अपने शौहर की तरफ देखा तो वो कहने लगे आओ मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। मेरे शौहर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। एक मर्तबा इसकी मुस्कुराहट को देखकर मैं कांप उठी। इसकी अजीब सी पुरअसरार मुस्कुराहट मुझे एक राज लग रही थी। मेरा शौहर मुझे इन आदमियों के पास ले गया। इनमें से कुछ बुजुर्ग थे और कुछ जवान। तब ही वो कहने लगा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने सबसे आगे बढ़कर सलाम किया तो सब ने यक आवाज में मुझे सलाम का जवाब दिया। मैं इधर उधर देख रही थी कि शायद कहीं मेरी सास मुझे दिखाई दे, मगर मेरी सास कहीं पर भी नहीं थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि अम्मा कहाँ पे हैं? तभी वो कहने लगा कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं माँ को बुला कर लाता हूँ। मैं हैरान रह गई। मैंने इनसे कहा कि मैं यहाँ पर बैठकर क्या करूँगी? ये सब मर्द हजरात हैं, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तभी वो मुस्कुरा कर कहने लगे कि फिक्र नहीं करो, ये अपने ही हैं।
तुम बैठो, मैं अभी अपनी अम्मा को बुला कर लाता हूँ। वो जबरदस्ती मुझे इन मर्दों के सामने बिठाकर अपनी माँ को बुलाने चला गया। आधा घंटा गुजर चुका था मगर अभी तक ना मेरी सास आई थी और ना ही मेरा शौहर। अब तो वहाँ पर बैठकर इन मर्दों के अजीब नजरों को देखकर मैं थक गई थी। तब ही अपनी जगह से उठी और अपने कमरे में चली गई। मुझे रोना आ रहा था अपनी बेबसी पे। न जाने मेरा शौहर कहाँ चला गया था। मुझे 5 मिनट का कह के आधा घंटा हो चुका था, अभी तक मेरा शौहर वापस नहीं आया था। थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाजा खटकने की आवाज आई। मेरी रूह एकदम कांप उठी। न जाने कौन था जो दरवाजा खटखटा रहा था। तभी बाहर से एक लड़की की आवाज आई, भाभी मैं अंदर आ जाऊं। मैंने सुख का सांस लिया। ये मेरी बड़ी नंद थी। मैंने इससे कहा कि जी आ जाएं। वो अंदर आई तो मैंने इसको देखा। इसने अजीब सा लिबास पहन रखा था, इतना चमकीला लिबास, मगर मुझे इससे क्या लेना देना। तभी मैंने सर झटका और इसकी तरफ मुस्कुरा कर कहा कि आओ बैठो आकर। तभी वो कहने लगी कि भाई गुस्से हो रहे हैं, वो आपको मेहमानों के पास बैठा कर गए थे और आप उठकर अंदर आ गई। मुझे इसकी बात पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं बेकसूर होकर भी कसूरवार ठहराई जा रही थी। मैंने अपनी नंद से कहा कि मैं कब से वहां पर बैठी थी और तुम्हारा भाई न जाने कहां गायब हो गया। तभी वो कहने लगी कि मेरा भाई मुझे लेने के लिए गया था। वो कह रहा था कि आप शायद अकेली उदास हो रही हैं, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाऊं ताकि आपका भी दिल बहल जाए, इसलिए मैं आपके पास आ गई हूं। चलो भाई बाहर बुला रहे हैं। मैं बाहर निकली तो घर में एक अजीब सा रश था। शादी तो हो चुकी थी, फिर भला रश किस बात का था? चूंकि हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं था। हमारे घर में शादी का फंक्शन होते ही मेहमान चले जाया करते थे। मैंने कंधे उचका दिए, शायद इनके कोई रिवाज हो। मैंने अपनी नंद से कहा कि मेहमान अभी तक क्यों नहीं गए? तभी वो कहने लगी कि ये मकलावा लेकर जाएंगे। मैंने हाँ में सर हिलाया। तभी मेरा शौहर मेरे पास आया और आकर कहने लगा कि आज जो तुमने हरकत की है, तुम्हें पता है कि इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हो सकता था। आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत करना। मैंने हैरत और बेयकीनी से अपने शौहर का रवैया देखा। मैंने इससे कहा कि क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारा नुकसान मैंने किया, वो कैसे? तभी वो एकदम गहरा सांस लेकर रह गया और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं बस जज्बाती हो गया था। तुम्हें इन मेहमानों के पास बैठना चाहिए था। मैंने कुछ गुस्से में कहा कि मैं इनके पास ही बैठी थी। आधा घंटा गुजर चुका था। इनकी अजीब नजरें मुझे कोफ्त ज़दा कर रही थीं, इसलिए मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। तुम तो मुझे वहां बैठाकर न जाने कहां गायब हो गए थे। कोई भला अपनी बीवी के साथ, वो भी नई नवेली बीवी के साथ ऐसा करता है? अब मुझे क्या पता कि तुम्हारे कौन से रिश्तेदार तुम्हारे क्या लगते हैं। मैं हर एक से इतना दोस्ताना माहौल बनाकर नहीं रह सकती, खास तौर पर मर्दों के साथ। अगर औरतें होती तो मैं वहां पर बैठी रहती। मेरे शौहर ने एक नजर मेरी सास को देखा और फिर खामोश हो गया और गहरा सांस लेकर कहने लगा, मेरी गलती है, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूंगा। शादी को 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में घर में एक अजीब सी हलचल मची रहती थी जो मुझे दिखाई नहीं देती थी, लेकिन ऐसे महसूस होता था जैसे सैरो तफरीह का समा है। जिस रोज नंद दवाई की बात करके गई, इस रोज मैं अपने कमरे में बैठी पुरसोच निगाहों के साथ सामने लगी खिड़की को देख रही थी। जब मेरा शौहर मेरे पास आया और आकर कहने लगा, क्या बात है, आज बड़ी चुप चुप हो? मैंने गहरा सांस लिया और दिल में सोचा कि क्या शौहर को ये सब बताना चाहिए, तो वो इनकी ही औलाद है, तरफदारी तो उन्हीं की करेगा, मगर मुझे कुछ न कुछ तो बताना था। मैंने अपने शौहर से कहा कि आज बड़ी आपा आई थी। वो अम्मा को कोई अद्वियात का कह रही थी कि मुझे कोई ताकत की दवाइयाँ खिलाई जाएं, मगर मैं किसी किस्म की कोई दवाई नहीं खाना चाहती। मैंने अपने शौहर से इल्तिजाई अंदाज में बात की। मेरा शौहर मुझे देखने लगा और फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, तुम वो दवाइयाँ खा लो, इस तरह तुम्हारे वजूद में ताकत आएगी। और तुम्हें पता तो है कि अम्मा को दादी बनने का कितना शौक है। चलो इस तरह शायद तुम्हें हमल भी जल्दी हो जाए। मैंने अपने शौहर को हैरत और बेयकीनी से देखा और कहा कि मुझे लगा था कि शायद आप मेरी तरफदारी करेंगे और कहेंगे कि नहीं, तुम्हें किसी किस्म की कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। और रही बात औलाद की, तो ये तो रब की देन है, इसने जब अता करना हुआ तब कोई कुछ नहीं कर सकेगा।
मेरा शौहर अपनी बात कह के खामोश हो गया। शायद वो मेरे बोलने का इंतजार कर रहा था। मैंने अपने शौहर से फिर एक मर्तबा कहा कि न जाने वो दवाइयाँ कैसी होंगी, मुझे नहीं खानी वो दवाई। तभी मेरा शौहर कहने लगा कि तुम मेरी माँ को गलत समझ रही हो, वो तुम्हारा इतना ख्याल करती हैं, तुमसे इतनी मोहब्बत करती हैं। अरे इन्हें क्या पड़ी है, वो तो तुम्हारे लिए ही कह रही हैं कि सारा दिन काम काज करके थक जाती हो तो चलो ताकत की दवाई खाओगी तो तुम्हें भी कुछ आराम मिलेगा, मगर तुम तो मेरी ही माँ को गलत समझने लगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि नहीं, मैं इन्हें गलत नहीं कह रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मुझे दवाइयाँ नहीं खानी। तभी मेरा शौहर एकदम भड़क उठा और कहने लगा कि तुम्हें अगर कोई दवाई नहीं खानी तो मत खाओ, आज के बाद मैं अम्मा से कह दूंगा कि वो तुम्हें कुछ न कहें, आज के बाद मेरी माँ तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं खामोश हो गई और अपने शौहर से कहा कि तुम सास से कोई बात नहीं करोगे। मेरा शौहर मुझे गुस्से में देखकर बाहर चला गया। अब मुझे मजबूरन अपनी सास की दी गई दवाइयाँ खानी पड़ रही थीं। मैं जब भी वो दवाई खाती, दवाई खाते ही मुझे नींद का ऐसा दौरा पड़ता कि सुबह ही आंख खुलती शौहर की तरफ देखती तो वो भी खफा खफा सा लगता। जब शौहर से पूछती कि क्या हुआ है, मूड क्यों ऑफ है, तभी वो कहता है कि तुम जानबूझकर मेरे आने से पहले सो जाती हो ना, तुम चाहती ही नहीं हो कि इस घर को औलाद मिले। अरे मेरी माँ की एक ही ख्वाहिश थी और वो तुम पूरी भी नहीं कर सकती। अगर तुम मेरी अम्मा को पसंद ना होती तो आज अपने घर पर होती, क्योंकि मैं अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपने शौहर का ऐसा रवैया मुझे परेशान कर देता था। अब तो ये रोज का मामूल बनता जा रहा था। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं ये सब जानबूझ के नहीं करती। मेरा शौहर मुझे कहने लगा, तुम्हें एहसास भी है कि मेरी अम्मा तुम्हारा कितना ख्याल रखती हैं और तुम हो के मैंने अम्मा से कह देना है कि आज के बाद तुम्हें कोई दवाई ना खिलाए। मैं सर पकड़ के बैठ गई कि मैं अपने शौहर को कहती कुछ हूँ और ये करता कुछ है। मेरा शौहर मुझे कहने लगा, आज के बाद अम्मा अगर कुछ भी दें तो इनके मुंह पे मार देना और कहना कि मुझे नहीं चाहिए। शौहर की ऐसी बातें मुझे अब ज़हनी मरीजा बना रही थी। इस पर मेरा वजूद ऐसे चूर था जैसे न जाने कितनी ही मुशक्कत की हो, मगर मैं अपने शौहर को ये भी नहीं बता सकती थी। यकीनन वो इसका गलत मतलब लेता। मेरे ससुराल वाले बड़े ही जालिम थे। पूरा दिन काम करती, जब थकन से चूर होती तो सास कहती ताकत की गोलियां खाओ, वो गोलियां खाते ही मुझे नींद आ जाती। सुबह शौहर जलील करता कि जानबूझकर मेरे आने से पहले सो जाती हो। अब मैं परेशान हो गई, वो गोली न खाती तो सास नाराज हो जाती। एक दिन गोली खाने का नाटक करके कमरे में चली गई। इसी रात मुझ पर क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि सास और शौहर दोनों मिलकर मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे कमरे में मेरे शौहर के अलावा एक और मर्द आया और कुछ पैसे मेरे शौहर के हाथ में पकड़ाए। ये सब मैं अपनी हल्की आंखें खोलकर देख रही थी। मेरे शौहर ने वो पैसे पकड़े और अजीब सी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कमरे से बाहर चला गया। मेरी सास भी मेरे शौहर के साथ चली गई और वो लड़का मेरे पास आने लगा। मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। समझ नहीं आ रहा था कि अपनी जगह से उठ जाऊं या इंतजार करूं कि आखिर वो करेगा क्या। मगर जैसे ही इसने मेरे ऊपर से कंबल उतारा, अब तो मेरी बस हो गई थी। मुझे खौफ महसूस होने लगा था। वो जैसे जैसे मेरे पास आ रहा था वैसे वैसे मेरा दिल दहलता जा रहा था। तब ही मैं एकदम उठी और इसका गिरबान पकड़ लिया। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? शोर की आवाज सुनकर मेरा शौहर और मेरी सास भी कमरे में आ गए। मेरा शौहर कहने लगा कि तुमने वो दवाई नहीं खाई क्या जो अम्मा ने तुम्हें दी थी? मैं सब माजरा समझ चुकी थी। मैंने इस लड़के से कहा कि तुम कौन हो, मुझे साफ साफ बता दो। तभी वो लड़का कहने लगा कि मैंने आज रात के लिए तुम्हारे पैसे दिए हुए हैं इस आदमी और इस औरत को, तभी तो आज मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं पिछले कई दिनों से तुम्हारे पास आ रहा हूँ और तुम्हें खबर भी नहीं होती। मैं सारा मामला समझ गई थी। मेरे शौहर और मेरे सास के रंग एकदम उड़ गए थे। तभी मैंने अपनी सास की तरफ देखा और कहा कि तुमने जो मेरे साथ किया इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तभी मेरी सास एकदम कहने लगी, अरे तुम कौन सा इतनी अफसर लगी हो? अभी मैं अपने बेटे से कहती हूँ तुम्हें तलाक दे और तुम अपने घर चली जाओ। मगर मेरे चेहरे पर अब की मर्तबा एक मुस्कुराहट थी। वो मेरी मुस्कुराहट को देखकर एकदम परेशान हो गए। मैंने तो इनका सारा राज ही पलट दिया था। जब मैंने अपनी सास से कहा कि
तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। वो कहने लगी, कौन हो तुम? मैंने इसे कहा कि मैं सेक्रेटरीट एजेंट हूँ बहुत अरसे से। इस घर के बारे में अजीब अजीब वाकयात सामने आ रहे थे और मुझे इस मिशन के लिए यहाँ पर भेजा गया है कि मैं तुम लोगों का राज फाश करूँ। मगर इसके लिए मुझे तुम्हारे बेटे से निकाह करना था। मैंने तुम्हारे बेटे से निकाह किया, मगर अल्लाह की ऐसी करनी हुई कि तुम्हारा बेटा एक मर्तबा भी मेरे पास ना आया। जब नेक नियत हो तो रब भी सहारा बन जाता है। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। मैंने ये 2 महीने बहुत मुश्किल से तुम्हारे घर में गुजारे। फिर एक रोज मैंने अपने एक साथी को पैगाम पहुंचाया कि वो एक गाहक बनकर घर में आए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर रोज वो दवाई खाती थी? नहीं, मैं सिर्फ दवाई का नाटक करती थी। और ये अकरम हर रोज मेरे पास आता था ताकि हम दोनों मिलकर एक नया प्लान बना सकें। तुम लोग जो हर रोज एक नया गाहक मिलने पर खुश होते थे ना, वो सब गाहक मेरे ही भेजे गए होते थे। मेरी सास एकदम हैरान रह गई और कहने लगी कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने अपनी सास से कहा कि अच्छा ऐसा है तो चलो ठीक है, कुछ देर आराम करो, या एक काम क्यों नहीं करती? अब ये कुछ देर तुम काम कर लो, फिर सारी जिंदगी तुम्हें जेल में आराम ही करना है। वहाँ तुमसे कोई काम नहीं करवाया जाएगा। मेरी सास और मेरा शोहर बाहर की तरफ भागने लगे थे जब मेरे मेहमानों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वही आदमी जो इस रोज मेहमान बनकर आए थे और मेरा शोहर मुझे इनके पास बिठा गया था। मेरी सास और मेरे शोहर को लग रहा था कि शायद वो गाहक हैं और मेरी बोली लगवाने के लिए वो मुझे इसके पास बिठा कर गया था। मगर इनका तो सारा खेल ही पलट गया था। सारा कुछ ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो गया था। मेरी सास और मेरा शोहर एक कारोबारी इंसान थे, लड़कियों का कारोबार करते थे और ये सब इस कदर राजदारी में करते थे कि आज तक मोहल्ले में रहते इन्हें कोई पकड़ नहीं पाया था। तभी जब हमें इस बात की खबर मिली तो मेरे बास ने मुझे चुना। मैं इस बात पर खुश थी कि इस मिशन के लिए मुझे चुना गया है, मगर मैं नहीं जानती थी कि मुझे इस सब का कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरी शादी हो चुकी थी, मुझे इस मिशन के लिए निकाह करना पड़ा था। वो निकाह मैंने सच्चे दिल से किया था और यहाँ तक सोचा था कि अगर मेरा शोहर अपनी गलती का इतराफ कर लेगा तो मैं इसे माफ कर दूंगी, मगर मेरे शोहर ने ऐसा ना किया। वो अभी भी हट दर्मी से बैठा था और हमेशा मुझे कहता कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं पैसे कमाना चाहता था, अमीर होना चाहता था ताकि अपने रिश्तेदारों के तानों से बच सकूं, जो हमेशा मुझे एक ही बात कहते थे कि तुम लोगों के घर में तो कुछ खाने पीने को नहीं होता, हर वक्त भूख हड़ताल लगी रहती है। अरे मैं पढ़ा लिखा हुआ था और मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो इस सब में मेरा क्या कसूर था? लेकिन मेरा शोहर अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। मैं कई मर्तबा इसे कह चुकी थी कि तुमने जो भी किया गलत किया। पैसे कमाने के और भी बहुत तरीके थे। तुमने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी खराब की, किसी को अपनी बीवी बनाकर तो किसी को गली मोहल्ले से उठाकर। इन गरीब बापों का सोचा है जो अपनी बेटी के घर से गायब हो जाने के बाद कितना परेशान होते होंगे। इनका तो सर ही झुक जाता होगा, क्योंकि लोग तो माफी देने को तैयार ही नहीं हैं। बेटी घर से क्या गायब हुई, हर कोई आकर सर पे सवार हो जाता है। तभी वो मुझे कहता कि मुझे कुछ गलत नहीं लगता, कि मैंने शायद कुछ गलत किया हो। इंसान अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने भी ऐसा ही किया। जो मुझे सही लगा मैं खामोश हो गई, क्योंकि मेरा शौहर अपनी गलती इतराफ करने को तैयार नहीं था। मेरे शौहर को और मेरी सास को उम्र कैद की सजा हुई थी, जिसमें वो हमेशा के लिए जेल में रहने वाले थे। मैंने कई मर्तबा अपने शौहर को ऑफर भी की कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छुड़वा सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता दिखाई दे तो फिर मुझे पता तो चले कि तुम पहले से बेहतर हुए हो, फिर ही मैं तुम्हें छुड़वाऊंगी। मगर मेरा शौहर कहता है कि नहीं, मैं सारी जिंदगी यहाँ पे ही गुजार दूंगा, लेकिन अपनी गलती नहीं मानूंगा। इसे किस बात का खौफ था मैं नहीं जानती थी। मैंने कई मर्तबा इसे पूछने की कोशिश की कि अगर तुम्हें किसी और चीज का डर है कि शायद तुम सच बताओ तो तुम्हें कोई और सजा मिल जाए, तब भी मुझे बता दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम सच बोल दो कि और अपनी गलती मान लोगे, सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग लोगे, तो तुम्हें रिहा भी किया जा सकता है। मगर मेरे शौहर ने
میری ایک نہ سنی میرے ابا نے کئی مرتبہ کہا کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو، مگر میں نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا شادی ایک مرتبہ ہی ہوتی ہے اور وہ میں کر چکی ہوں، میں نے سچے دل سے شادی کی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر کبھی اپنی غلطی مانے گا یا نہیں۔ بے شک یہ نکاح ایک مشن کا حصہ تھا، مگر میں نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو اس نکاح کا گواہ بنا کر نکاح کو قبول کیا تھا، اور آپ پریشان مت ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنے شوہر کا گاہے بگاہے حال احوال پوچھتی رہتی تھی، اب تو وہ کافی کمزور بھی ہو گیا تھا، میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھ جاتی، وہ مجھ سے کئی مرتبہ اپنے دل کی باتیں کرتا، مجھے اچھا لگتا تھا، میرے ساتھی میرا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تم آخر کیا کرتی ہو اس کے پاس اتنی دیر بیٹھ کے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ نے میرے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا کر دی ہے۔ محبت کا میں یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی، مگر میرے دل میں اس کے لیے ایک الگ سا مقام تھا۔ تو وہ میرا شوہر ہے، اس نے اپنے اعمال کا جواب دینا تھا اور میں نے اپنے اعمال کا، اور مجھے یقین تھا کہ روز قیامت میں سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر کھڑی ہوں گی۔ ایک اچھی عورت جب اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہے تو وہ اسے یہ سکھاتی ہے کہ تم اپنے شوہر کے گھر سے اپنے باپ کے گھر کا موازنہ نہ کرنا، بلکہ جھکنا سیکھنا، نرمی رکھنا اور اپنی جگہ بنانا، اس کے بعد اپنی جائز بات منوانا۔ لیکن کہیں ایسا بھی سکھایا جاتا ہے کہ آج اگر جھک گئی تو زندگی بھر جھکنا پڑے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، سب کی بولتی بند کر دینا۔ یہ جو دوسرا طبقہ ہے یہ زیادہ لمبی اور خوبصورت ازواجی زندگی کبھی نہیں گزار پاتے، ایسے لوگ اپنی جوانی اور زندگی کے خوبصورت لمحات لڑائی جھگڑے میں ہی کھو دیتے ہیں۔ رشتوں میں باندھ لینا یا بندھ جانا ہی کافی نہیں ہوتا، اس رشتے کو اس کے تقدس کے حساب سے نبھاتے جائیں تو ہی کمال ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔